Hello students, in today's lecture we are going to continue with our chapter number 10 of history book part 3. The title of today's topic is the hoe and the plow. Hoe and the plow, these are the two implements which are used in agriculture. Here in this topic we will also study about the Rajmahal hills, the hills which are located in present day Jharkhand, and they form one of the most oldest mountain range of India. These hills, they were surveyed by a British official known as Francis Buchanan, who by profession was a physician who came to India and served in the Bengal Medical Service. But on the request of the government of Bengal, he undertook detailed surveys of the areas under the jurisdiction of the British East India Company. Later on, he fell ill and returned to England. Let's learn more about this topic. The hoe and the plow. In this topic, we will shift our focus from the wetlands of Bengal to the drier zones. Wetlands of the Bengal means the lands which were earlier used for cultivation, and the drier zones means the mountain ranges. In the wetlands, the main occupation of the people was agriculture, and they were leading a settled life, the settled cultivation. And here in the drier zones, means in the mountain ranges, the main occupation of the people was agriculture, but its type was shifting agriculture. So here we will see the changes that came about when the frontiers of the East peasant economy expanded towards, and they have converted the pasture land and the forest land in the Rajmahal hills into the agricultural field. Let's see what more happened over here and how these changes, they created a situation of conflict. So 2.1 topic, in the hills of Rajmahal. In the early 19th century, Buchanan, I told you Francis Buchanan, he traveled through the Rajmahal hills. उन्होंने अपनी सर्वे स्टार्ट करी, एंड फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से उन्होंने राजमहल हिल्स के बारे में बताया कि दीज हिल्स अपीयर टू बी इम्पेनिट्रेबल, कि यहाँ पर एंटर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत घना जंगल था. अ जोन वेयर फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर. कहते ये वो एरिया था, ये वो हिल्स थी जहाँ पर बहुत कम से कम लोगों का आना जाना होता था और ये जंगल खतरे से भरे हुए थे. अब बुकानन जहाँ जहाँ भी गया, wheresoever he has went, the people they have seen him with a very hostile eyes. जब ये राजमहल की पहाड़ियों में एंटर किया बुकानन ने, तो लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा अनिमी वाली आइज़ के साथ देखा. They were not willing to talk to him, उससे बातचीत भी नहीं करना चाह रहे थे और उसको बहुत ही डाउटफुल वाली नज़रों से देख रहे थे. और बहुत सारे केसेस में बुकानन ने नोटिस किया दैट दे डिजर्टेड देयर विलेजेस, उन्होंने अपने गांव छोड़ दिए और किसी अननोन प्लेस में जाकर बस गए. नाउ द क्वेश्चन इज, हु वर दिस हिल फोक, ये पहाड़ी लोग कौन थे? जब बुकानन ने राजमहल हिल्स में विज़िट किया तो वो उसको इतनी डाउटफुल वाली आइज़ के साथ क्यों देख रहे थे? बुकानन की रिपोर्ट से हमें पता चलता है अब कि जो राजमहल हिल्स के लोग थे, they were living a very miserable life. तो उसके इन अकाउंट से हमें टेंटलाइजिंग ग्लिम्स मीन्स तरस खाने वाली हालात की झलक मिलती है. हिज जर्नल वॉज रिटन एज अ डायरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड. कहते जहाँ जहाँ भी बुकानन ने विज़िट किया उसने अपने इन सारे अकाउंट्स को अपनी डायरी में लिख डाला. पीपल ही एनकाउंटर्ड, जिन जिन लोगों के साथ वो मिला, एंड द प्रैक्टिसेस ही सॉ, लोग किस तरीके से काम करते थे, क्या उनके रीति रिवाज थे. तो जो कुछ भी उसने नोटिस किया, ही हैज़ रिटन इन हिज अकाउंट. इट रेजेस क्वेश्चंस इन आवर माइंड बट डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस आंसर देम. इट टेल्स अस अबाउट अ मोमेंट इन टाइम, कि उस पर्टिकुलर टाइम की हमें विशेषताओं के बारे में बताते हैं. देन बट नॉट लॉन्गर अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ द पीपल एंड द प्लेसेस, लेकिन कहते हैं कि
ये बुकानन के जो अकाउंट्स हैं वो हमें ज़्यादा लोगों के बारे में और ज़्यादा जगहों के बारे में नहीं बताते, और अगर हमने इनके बारे में कुछ और ज़्यादा स्टडी करना है तो हिस्टोरियंस को कुछ अन्य रिकॉर्ड्स को देखना होगा. So we can say that Buchanan's accounts provide us a lot of information, but they don't provide us a complete information. Historians, they tell us that if we look at the late 18th century revenue records, we come to know that the local people who were living there in these Rajmahal hills, they were called as Pahadiyas. वो पहाड़ियों में रहते थे इसलिए उनको पहाड़िया बोला गया. And they lived around the Rajmahal hills. किस तरीके से अपना लाइवलीहुड चलाते थे? बाय फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि फॉरेस्ट से जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसको वो कंज्यूम करते थे. और उनका टाइप ऑफ एग्रीकल्चर था शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वो छोटा सा फॉरेस्ट का कोई एरिया क्लियर करते थे, झाड़ियाँ वगैरह को साफ़ सफाई करते थे, एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ, जो नीचे कुछ भी अनवांटेड ग्रास वगैरह होती थी उसको बर्न करते थे. ये जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता था, इसमें जब वो अनवांटेड पार्टिकल्स को बर्न करते थे तो उसको फिर उसकी जो ऐश होती थी उसको सॉइल के लैंड के साथ मिक्स कर देते थे, जिससे सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा नरिश हो जाती थी. नेक्स्ट, पहाड़ियास जो थे वो बहुत ही अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, जैसे कि पल्सेस, दालें एंड मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी. एंड दीज क्रॉप्स दे वर द मेन सोर्स ऑफ कंजम्पशन. दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज. अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि वो एग्रीकल्चर के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे, कुदाल को, हो को, और वो ज़मीन को ज़्यादा गहरा नहीं खोदती थी. दे कल्टिवेटेड द क्लियर्ड लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स. जो उन्होंने एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड को क्लियर किया कल्टीवेशन के लिए, उसको वो थोड़े सालों के लिए यूज़ किया करते थे. एंड वी नो दैट व्हेन वी ग्रो द सेम क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, देन व्हाट हैपेंड, द लैंड स्टार्टेड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी. तो उस टाइम पर वो उस लैंड को फैलो छोड़ दिया करते थे, खाली छोड़ दिया करते थे, so that the soil can regain its fertility, and they moved to other piece of land. After moving to the other piece of land, they repeat the same process again. Unwanted bushes को उन्होंने कट कर देना और unwanted materials को उन्होंने burn कर देना. Later on they will mix up with the soil so that the soil can replenish its fertility. तो इस तरीके से जब एक लैंड को छोड़कर वो दूसरी लैंड पर शिफ्ट होते थे, इसी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं. अब बात आती है कि फॉरेस्ट से वो क्या कलेक्ट करते थे. फॉरेस्ट से महुआ नाम का एक फ्लावर था, दैट वाज कलेक्टेड फॉर फूड. सिल्क कोकून्स, बेचने के लिए रेशम कलेक्ट किया करते थे. रेजिन्स फॉर सेल, एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन. और घने जंगलों के नीचे जो घास उगी होती थी उसको वो एक मैट की तरह यूज़ किया करते थे. एंड दिस ग्रास वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ पास्चर फॉर कैटल. गाय भैंसों के लिए ये चारण भूमि का काम भी करती थी ये वाली लैंड. सो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ियास थे वो अपने लाइवलीहुड के साथ साथ अपने जो भी उन्होंने एनिमल्स को पाल रखा था उनको भी फॉरेस्ट से ही वो फूड प्रोवाइड करवाते थे. द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज एज हंटर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि दे वर ऑल्सो हंटर्स, दे वर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, दे वर द फूड गैदरर्स. चारकोल प्रोड्यूस किया करते थे, सिल्क वॉर्म्स को पालते थे, एंड दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, मीन्स उनका फॉरेस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन था. दे लिव्ड इन हटमेंट्स, इमली के पेड़ों के बीच उन्होंने अपनी झोंपड़ियाँ बना रखी होती थी. एंड रेस्टेड इन द शेड ऑफ द मैंगो ट्रीज़, कि मैंगो ट्रीज़ की छाया में वो आराम करते थे. और दे कंसिडर्ड द एंटायर रीजन एज देयर लैंड एंड द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज वेल एज सर्वाइवल. So historians have come to know that these forests, they were a part of their identity as well as their survival, and they didn't like the resistance or the entrance of the outsiders in the forest land. Their chiefs maintained the unity of the group. पहाड़ियों के जो चीफ होते थे, जो मुखिया होते थे, वो अपने ग्रुप के बीच में एकता बना के रखते थे. एंड सेटल डिस्प्यूट्स,
अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता था, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता था, तो उस कन्फ्लिक्ट को भी वो सॉल्व करने में उनकी हेल्प किया करते थे। दे लेड द ट्राइब इन द बैटल्स, जो मुखिया होता था, जो चीफ होता था, वो दूसरी ट्राइब्स के अगेंस्ट या फिर द पीपल, दोज पीपल हु वर लिविंग देयर इन द प्लेन रीजन्स, के उन मैदानी लोगों के बीच के साथ जब उनकी कोई लड़ाई हो जाती थी, तो उसमें भी वो अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। विद देयर बेस इन द हिल्स, द पहाड़ियास रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट लिव्ड। तो अब पहाड़ियों का तो बेस कहाँ पे है? हिल्स में। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ियाँ अक्सर प्लेन रीजन्स में अटैक किया करते थे, हमले किया करते थे, और ये हमले करने ज़रूरी भी थे बिकॉज दे वर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर सर्वाइवल, पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड पे व्हेन देयर वाज स्कार्सिटी, व्हेन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड, सो दे वर अ वे ऑफ एजर्टिंग पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटीज़। प्लेन एरियाज़ में सेटल कम्युनिटीज़ रहती थी, तो इस तरीके से रेड करके, अटैक करके वो सेटल कम्युनिटीज़ के ऊपर अपने पूरी कंट्रोल जमाना चाहते थे, एक भय, एक डर बनाना चाहते थे। एंड देयर वर अ मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस विद आउटसाइडर्स, और कई बार तो मुखिया ये कोशिश भी करता था कि कैसे इनके साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो स्थापित किया जाए, so that these plain people can help them in the time of need. The zamindars on the plains had to often purchase peace by paying a regular tribute to the hill chiefs. Very important to note कि वो ज़मींदार्स जो प्लेन एरियाज़ में रह रहे होते थे और सेटल्ड कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे, कई बार शांति मीन्स पहाड़ियाँ लोगों के साथ पीसफुल रिलेशन जो सेटअप करने के लिए उनको पहाड़िया चीफ्स को रेगुलरली नजराना देना पड़ता था। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव अ स्मॉल अमाउंट टू द हिल फॉक फॉर परमिशन टू यूज़ द पासिस कंट्रोल बाय देम। अब पहाड़ियों के अंदर पास होते हैं जहाँ से वो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, तो व्यापारियों को व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता था, और जिसके लिए उनके लिए सबसे सूटेबल जो रास्ता था वो था पास, माउंटेन पास। ठीक, सो इन माउंटेन पास को वो अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते थे, दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पीपल हु वर लिविंग ओवर देयर। पहाड़ी लोगों से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड वंस अ टोल वॉज पेड, ये वाला टैक्स देने के बाद पहाड़िया चीफ्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा प्रॉमिस करते थे और उनको पूरा एश्योरेंस देते थे कि जहाँ से भी वो पास होंगे उनको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी और उनके सामान को कोई भी लूटेगा नहीं। अब हिल्स के जो ज़मींदार, हिल्स के जो चीफ्स हैं उनके बीच में और जो प्लेन एरियाज़ के बीच में जो ज़मींदार्स हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता क्या है कि उनको सालाना नजराना दिया जाएगा और जिसके चलते वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इतिहासकारों का ये मानना है, हिस्टोरियंस फील दैट, कि ये जो ले देकर जो की गई जो शांति प्रस्ताव था वो कभी कभी टूट भी जाता था, ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही फॉलो किया जाता था। इट ब्रोक डाउन इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी when the frontiers of the settled agriculture were being aggressively extended in eastern India। तो इसमें ये कह रहा है कि ये लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ अपनी गुजर बसर कर रहे थे, फॉरेस्ट के मैक्सिमम प्रोड्यूस को ये यूज़ कर रहे थे, एंड इवन इट वाज आल्सो यूज टू प्रोवाइड फॉडर टू द कैटल्स। अब धीरे धीरे करके द लैंड अंडर दीज फॉरेस्ट इट वाज डिक्रीजिंग डे बाय डे। सो ब्रिटिशर्स ने इनकरेज किया यहाँ पे कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए क्योंकि फॉरेस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है। ज़मींदार्स एंड जोतदार्स दे टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू दी राइस फील्ड्स, एंड ब्रिटिशर्स ने एक्सटेंशन करने की कोशिश करी यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर की, कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बंद करो। द बेसिक रीज़न वॉज कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था वहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सो दे इंसिस्टेड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड इट so that they can get the regular land revenue and they can also get the produce for export and establish the basis of a settled and a ordered society, because according to the Britishers
द पहाड़िया पीपल, दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर फुल ऑफ वाइल्डनेस, जंगली हैं वो, और ब्रिटिशर्स उनको इसी तरीके से मानते थे कि वो जंगली हैं। दे आर सैवेज, अनरूली, असभ्य हैं वो, उनको रूल करना नहीं आता, प्रिमिटिव, ओल्ड हैं वो, न्यू ट्रेंड्स के बारे में, न्यू कल्चर के बारे में उनको कुछ नहीं पता, एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू गवर्न. So according to the Britishers, these forest land, it had to be cleared, and more area has to be brought under the settled cultivation. Forest people, they were to be tamed, कि उनको civilized बनाया जाएगा, सभ्य बनाया जाएगा, and persuaded to give up hunting, और उनको मनाया गया कि वो शिकार करना छोड़ दें, और हो के जगह पर इंस्टेड ऑफ हो दे कल्टीवेशन करने के लिए वो प्लो का इस्तेमाल करें. सो दिस वॉज अ बिग चेंज विच वॉज आस्क्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू दी पहाड़िया पीपल, कि वो अपना हो का त्याग करके, हो इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, आई टोल्ड यू, कि उसका त्याग करके प्लो को, हल को अपना लें. और इस समझौते के लिए जो पहाड़िया पीपल थे वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे. इसीलिए एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ अमंग द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पहाड़ियाज एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.